نئی تجاویز احمقانہ، جنگ بندی وینٹیلیٹر پر ہے۔ امریکی صدر نے ایران کی نئی تجاویز کو احمقانہ قرار دے دیا۔ جنگ بندی انتہائی نازک مرحلے میں ہے، ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، معاہدے تک ایران پر دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ تہران ایٹمی مواد ہمارے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایران کے پاس جوہری مواد ملبے سے نکالنے کی ٹیکنالوجی نہیں۔ چین کے صدر آبنائے ہرمز مسئلے کے حل میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر کا پروجیکٹ فریڈم بڑے پیمانے پر دوبارہ شروع کرنے کا عندیہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ابھی پروجیکٹ فریڈم کے دوبارہ آغاز کا حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ ایران میں سخت گیر قیادت کو جھکنے پر مجبور کروں گا۔ ایران نے ہم سے افزودہ یورینیم نکالنے کی درخواست کی ہے۔ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران کی ناکہ بندی عظیم ملٹری منصوبہ ہے۔ تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت پر بھی بات کروں گا۔ عوامی حقوق تسلیم کیے بغیر کسی بھی معاہدے تک پہنچنا ناممکن ہے۔ غلط فیصلے ہمیشہ غلط نتائج ہی پیدا کرتے ہیں۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ ایران کے 14 نکاتی منصوبے میں بیان کیے گئے عوامی حقوق کو قبول کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں۔ کوئی بھی طریقہ کار مکمل طور پر بے نتیجہ ثابت ہوگا اور صرف ایک کے بعد دوسری ناکامی کا سبب بنے گا۔ جتنا زیادہ وقت ضائع کیا جائے گا اس کی قیمت امریکی ٹیکس دہندگان کو ہی ادا کرنی پڑے گی۔ ایران سے مذاکرات یا جنگ، امریکی صدر نے قومی سلامتی اجلاس طلب کر لیا۔ ایران کے خلاف جنگ پھر سے شروع کرنے پر غور کیا جائے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق میٹنگ میں جے ڈی وینس، مندوب سٹیو وٹکوف، وزیر خارجہ کی شرکت متوقع۔ وزیر جنگ، سربراہ CIA اور جنرل ڈین کین کی شرکت کا بھی امکان۔ ٹرمپ کسی قسم کے فوجی ایکشن کی جانب مائل ہو رہے ہیں۔ ایران پر دباؤ بڑھایا جائے اور نیوکلیئر پروگرام پر رعایتیں حاصل کی جائیں۔ دوبارہ ایران پر حملہ ہوا تو جواب بہت خطرناک ہوگا۔ ترجمان ایرانی پارلیمانی کمیشن نے واضح کر دیا، کہا کہ تہران کا 90% یورینیم افزودگی بھی ایک ممکنہ رد عمل ہو سکتا ہے۔ دوسرے حملے کی صورت میں ایران کے آپشنز میں 90% افزودگی بھی شامل ہو سکتی ہے۔ حملے کی صورت میں یورینیم کے استعمال کا پارلیمنٹ میں جائزہ لیا جائے گا۔ یورینیم افزودگی کو اپنا ناقابل تنسیخ حق سمجھتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مغربی ممالک 90% افزودگی کو ہتھیاروں کے درجے کے قریب قرار دیتے ہیں۔ فتنۃ الخارج کا لکی مروت کے سرائے نورنگ بازار میں دہشت گرد حملہ، 20 سڑک دھماکے میں 2 پولیس اہلکاروں اور 5 سویلین سمیت 7 افراد شہید، متعدد زخمی۔ خارج نے لکی مروت میں سرائے نورنگ بازار کو دھماکے سے نشانہ بنایا۔ خارج نے دھماکے کے لیے موٹر سائیکل پر دھماکہ خیز مواد استعمال کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ خارج ہندوستانی آقاؤں کے اشارے پر غزب للحق کے کامیاب آپریشن سے حواس باختہ ہو چکے۔ فتنۃ الخارج سول آبادی اور سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ وزیر اعظم کی شہداء کے لیے دعائے مغفرت، زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا، جلد ملزمان کو انجام تک پہنچانے کی ہدایت۔ وزارہ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا لکی مروت میں نورنگ پھاٹک بازار میں دھماکے کا نوٹس۔ وزارہ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے IG پولیس سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ کہا شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ صوبائی حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ وزارہ سہیل آفریدی کا زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیراعظم کا خوشحال گڑھ پل پر دہشت گردی ناکام بنانے والے شہید لیاقت کو خراج تحسین۔ شہید لیاقت کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ذمہ دار شہری کی حیثیت سے لیاقت نے مشتبہ شخص کو روک کر شناخت پوچھی۔ دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ جنڈ کے علاقے میں لیاقت خان شہید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ لیاقت خان شہید کی نماز جنازہ اٹک پولیس لائنز میں ادا کی گئی۔
नमाज जनाजा में सिविल और अस्करी हुकाम समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म मुश्किल में। लेबर पार्टी के बदतरीन नताज पर वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया। इस्तीफा मांगने वालों में नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला समेत अहम काबीना अराकीन का नाम शामिल। इस्तीफे का मुतालबा करने वाले लेबर अराकीन पार्लियामेंट की तादाद 70 हो गई। नए पार्लिमानी लीडर के इंतखाब की तहरीक के लिए 81 अराकीन की हिमायत दरकार है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर का मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। काबीना का अहम इजलास होगा। कीर स्टारमर के मुस्तकबिल का फैसला मुतवक्किल। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर को अपनी ही जमात की जानिब से शदीद चैलेंजेस का सामना। वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर अपना ओहदा बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर के मुतबादिल के तौर पर कई अहम नाम मंजरेआम पर मुमकिना उम्मीदवारों में वज़ीर सेहत वेस स्ट्रैटिंग सबसे नुमाया। नायब रहनुमा एंजेला रेज अपनी सियासी बुनियादें मजबूत कर रही हैं। साबिक रहनुमा एडमली बैंड का नाम भी एक बार फिर बतौर वज़ीर-ए-आज़म गर्दिश करने लगा। अमेरिका में हंटा वायरस के खदशात के पेश नज़र सख्त हिफाजती इक़दाम। क्रूज शिप से वापस आने वाले 1 दर्जन से ज़्यादा अमरीकी क्वारंटीना मुंतकिल। नेब्रास्का के नेशनल क्वारंटीना यूनिट में सख्त हिफाजती इक़दाम नाफिज किए गए। क्वारंटीना यूनिट में मुलाकात और किसी किस्म के बराह रास्त मेल जोल की इजाज़त नहीं। नेशनल क्वारंटीना यूनिट का अमला खसूसी हिफाजती लिबास में खदमात अंजाम दे रहा है। मरीज अपने अहल खाना और दोस्तों से फ़ोन और वीडियो कॉल के जरिए रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जमान दफ्तर खारजा ने CBS न्यूज़ की रिपोर्ट को गुमराहकुन और सनसनीखेज करार दे दिया। ताहिर हुसैन इंदिराबी कहते हैं कि ऐसी क़यास आराइयाँ इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को सबोताई करने की कोशिश। पाकिस्तानी सरजमीन पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी का किसी फ़ौजी मकसद या तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। तमाम मुतल्लक़ा अफ़रीकैन के साथ मुकम्मल शफ़ाफ़ियत राब्ता बरकरार रखा है। आज आपके सामने माइनस माई पर्सन, मैं कौन हूं उसको छोड़ दें, लेकिन क्या ये एक ख़वातीन के लिए फ़ख्र की बात नहीं है कि पाकिस्तान की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर इज़ फ्रॉम लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी। वालिदा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं कभी डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी। इसी इदारे से पढ़ी और आज बतौर वज़ीर आला यहाँ खिताब कर रही हूँ। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन में शिरकत एजाज़ है। डिग्री के हसूल के बाद आपका सफ़र ख़त्म नहीं होगा। यूनिवर्सिटी से बहुत यादें वाबस्ता हैं। पहली बार पंजाब में डिवीजन्स में ख़वातीन कमिश्नर्स बनी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन से खिताब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तामीर कसीरुल मंजिला हॉस्टल के जारी तामीराती कामों का जायज़ा लिया। हॉस्टल में कायम मॉडल रूम का भी जायज़ा लिया। मॉडल रूम को मज़ीद बेहतर बनाने का हुक्म। एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के मंसूबे 31 मई तक मुकम्मल करने का टास्क। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ड्राइविंग स्कूल में अफसरान को जदीद ड्राइविंग और कार चेस की तरबियत दी जाएगी। सालों के अंदर कोविड से लोगों की मरने की तादाद ऑलमोस्ट खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी वैक्सीन इजाद हो गई। तो अगर किसी बीमारी से इंसानों को मरने से बचाना है तो प्रिवेंशन करनी है। एंड जब हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसका एक ही तरीक़ाकार है कि उसकी वैक्सीन बनाई जाए और इजाद की जाए और लगाई जाए। तो वैक्सीन जब तक इंसान है क़यामत तक ये वैक्सीन वाला काम होता रहेगा। पाकिस्तान में खाम माल तैयार करने का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के सेहत के शोबे के लिए काबिल फ़ख्र लम्हात हैं।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि चीनी कंपनियां पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी मुंतकिल करेंगी। पाकिस्तान में अद्वियात साजी के शोबे में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से बच्चों को 13 वैक्सीन मुफ्त लगाई जा सकती हैं। आलमी आइंदा आने वाले सालों में कैंसर से बचाव की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। पाकिस्तान की वाहिद एक हॉस्पिटल, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, किसी सूबे की किसी डिवीजन डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा, जिसमें लंग्स का मुफ्त में इलाज होता हो, जिसमें लिवर का मुफ्त में जो है ट्रांसप्लांट होता हो, वो और कोई नहीं, वो कम्फर्ट हॉस्पिटल है, वो भी खैरपुर जिले में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क़यादत ने बनवाई है। रिकॉर्ड तरक्याती काम कराने के बावजूद पीपल्स पार्टी पर तनकीद की जाती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का खैरपुर में तकरीब से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी का मीडिया ट्रायल किया जाता है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा इत्तेहाद बनते हैं लेकिन इन्हें शिकस्त होती है। सियासत इखलाकियात के दायरे में होनी चाहिए। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काम सिंध हुकूमत कर रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कोई नहीं। खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। आवाम को कम किराए में AC वाली बस फराहम कर रहे हैं। मार के हक में पाकिस्तान ने भारत के सिंदूर को मिटा दिया। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। पंजाब काबीना के इजलास में कल बड़े अवामी मफाद के फैसले किए गए। वज़ीर-ए-इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने काबीना के हर इजलास में अवाम को तरजीह दी। अपनी इंश्योरेंस कंपनी की मंजूरी दी है। सरकारी मुलाजमीन और आम शहरियों की इंश्योरेंस होगी। मरियम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के तहत कच्चे के लोगों को तरजीह दी है। पंजाब से अगर कोई भी सूबा किसी मंसूबे में रहनुमाई या मदद हासिल करना चाहता है तो हमारे दरवाजे खुले हैं। रावलपिंडी में 15 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। अडयाला जेल और इसके अतराफ का इलाका रेड जोन करार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के नोटिफिकेशन के मुताबिक अडयाला जेल और हसास तंसीबात के अतराफ पाबंदियां आयद रहेंगी। हर किस्म के जलसे, जुलूस, धरने, रैलियां और एहतजाज, असलहा, लाठियां, गुलैल, पेट्रोल बम और धमाका खेज मवाद ले जाने पर पाबंदी होगी। पुलिस की जानिब से लगाई गई रुकावटें हटाने की कोशिश भी ममनू करार। भारतीय फौज अपने दिफा में भी नाकाम। मणिपुर में अलहदगी पसंदों का आसाम राइफल्स के कैंप पर कब्जा। मोदी हुकूमत की इंतहापसंद और मुतासिबाना पॉलिसियों के बायस रियासत मणिपुर में अलहदगी पसंद तहरीक जोर पकड़ चुकी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मणिपुर में अलहदगी पसंद तहरीक के अरकान भारतीय फौज के आसाम राइफल्स कैंप में दाखिल हो रहे हैं। वीडियो में भारतीय वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला मणिपुर को बुज़दिल करार दिया है। मोदी का हिंदुत्व एजेंडा बेलगाम। मगरबी बंगाल में नाम निहाद भारतीय जमहूरियत का असल चेहरा बेनकाब। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत को अमली तौर पर मुकम्मल यकजमाती रियासत बनने के खतरे से दोचार करार दे दिया। मोदी की हिंदू कौम परस्त जमात ने बड़ी अपोजिशन रियासत मगरबी बंगाल में जीत का ऐलान करके जमहूरियत का गला घोंट दिया। मोदी एक ऐसे भारत की क़यादत कर रहा है जहां अपोजिशन के पास तकरीबन कोई सियासी ताकत बाकी नहीं रही। ढाका टेस्ट। बांग्लादेश का पाकिस्तान को जीत के लिए 268 रन का हदफ। बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स 240 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। शाहीनों को ढाका टेस्ट जीतने के लिए कम से कम 75 ओवर्स में 268 रन बनाने होंगे। बांग्लादेश ने टेस्ट के 5वें रोज दूसरी इनिंग्स 152 रन 3 खिलाड़ी आउट पर शुरू की। बांग्लादेश की 7वीं विकेट 225 और 9वीं 240 रन पर गिरी। हसन अली और नुमान अली की 3-3, शाहिन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की।